My name is Hamid Hussain, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. And yet again, we are gathered again for yet another very uh, fun and creative kind of class. And today we are going to start our Photoshop section या Photoshop का वो वाला aspect जहाँ से आप pictures की treatment के ऊपर थोड़ा थोड़ा continue करेंगे. The last time we practiced which was the tool, that was the tool I think patch tool, and patch tool के साथ there were a couple of more tools, though those are very important to understand. So I thought let's wind up that section first. So let's open up our first thing, why we use healing brush tool. Acha, to give you the basic history of this, as you all know, that we have been using Photoshop for mainly for the picture treatments. And जैसे जैसे versions and the latest versions of the Photoshop that came up, they gave up this kind of options to treat the colors and treat the photos at the best possible fashion, best possible way. And they came up maximum tools for this kind of services. And what happened at just as time pass hota raha, there were so many tools which came across. The first I gave you, that was the kind of tool which was actually selection tool. Selection से आप किसी भी area की specific selection picture में से किसी एक selection को निकाल के you can, what you do is you can treat some sort of things like this. और इसके अलावा फिर इसमें further ये stamp tool I told you, that was a very simple tool कि एक चीज को stamp करना है. On the other side, that was yet another a very huge achievement in the Photoshop that came across. And then उसके बाद उसी की upgraded version में there was a patch tool which came across. So patch tool ने क्या किया, और भी जिंदगी आसान कर दी. And now with the latest Photoshop, or we are using whatever the version which is actually CC से ऊपर जितने versions हैं उन तमाम में that in the toolbox when you move across you see there's a patch tool. Patch tool पे just click करके रखें for more than a second, you find out there are two more tools: heading healing brush tool and spot healing brush tool. Red eye tool is mainly a very simpler for all those sort of pictures जहाँ पे when you take a picture at night from your camera, you find out the eyes of a human being, either whosoever that is, uski eyes में a kind of red circle आ जाता है. So this red eye tool is just select this and उसके ऊपर आप circulate करेंगे तो वो automatically wipe out कर देगा. There's nothing as such, कोई इसमें कुछ नई या कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है. It is just कि एक circle आपने eyes के अंदर लगाना है. अगर किसी को ये एक्सपेरिमेंट ना समझ आए तो जस्ट लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक आपको छोटा सा एक प्रीएम्बल दे दूंगा. सो coming back to the patch tool, yesterday we discussed in our last class, last में तो हमने pen tool किया था, उससे पहले वाले में patch tool किया था. The patch tool is actually creating patch from one location to the other and to the other to the other. And then we reach to this healing tool today. What is happening in the healing tool? हीलिंग टूल में बेसिकली हो ये रहा है कि जब हम किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट डू नॉट ओपन योर कैमरास बिकॉज दैट इज हेल्पिंग दिस होल क्लास. ओके, सो लेट मूव to the next level. Yeah, for example, for this purpose, for to experiment this healing tool purpose, we need at least one picture of any old man. So the idea is, let me share my complete screen with you and move from here to I was searching just a couple of minutes before, I was searching an old man distorted pictures, right, to give you the experiment. So I was rolling across and I found this picture. This is a very good example, very good quality picture. लेकिन एक चीज और बड़ी important, whenever you are working in the Photoshop, you are trying to make a copy of this picture, keep in mind the best source is right click and save image as whatever the location जो भी आप अपने कंप्यूटर पे desktop either whatever the location जिस पे भी save करना चाहते हैं. But if you're not interested in that, you can directly copy this image and automatically when you move to this Photoshop, it will give you the option to create a new document first. And let me wind up this one, minimize करते हैं इसको.
and फाइल से जाते हैं create a new document. And interestingly, whatever the size which you have copied, by default the Photoshop understands that you want to have a document of this size. That's width is about 2000 and height is about 1000. Let's roll back to this one first and have a look at this. That's the image size and I copied this. And for example, इसके अलावा अगर मैं इसको copy करता हूँ, that is 15362.402. Let's copy this image and हम दोबारा इस पे आ जाएंगे just to give you experiment. मैं इसको करता हूँ close, minimize and file say new. Now have a look at this, the size, the width and height. That would have been changed according to the image which you are trying to copy and paste in the Photoshop. So accordingly उस size का ये image open हो जाएगा. So let's cancel this, roll back to our main image. This is what we are trying. So right click on this, copy this image and create a new document in the Photoshop. File, new, and here it is 2000 by 1000 size document. Here it is the new document. Let's paste that document somewhere here. Just control V करेंगे and you find out कि exact वही image उसी location के ऊपर inside the layer, that is one is the background जो आपने नई layer create की थी, उसमें एक नई layer में ये image आपके पास आ चुका है. So what we do now कि यहाँ से हम इसके ऊपर experiment, just simple सा experiment, there's nothing as such specific for the healing brush tool. What you have to do is कि let's suppose यहाँ पे spots हैं जिनको आप heal करना चाह रहे हैं. And there are plenty of, like the best example is this old man. मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ zoom in to give you more crystal clear experiment कि कैसे ये healing brush, healing tool कैसे काम करता है. So what we do is healing brush पे click करेंगे, alt की से जिस तरह exactly click करते थे यहाँ पे और उसके बाद automatically destination point पे जाके alt की को छोड़ देंगे. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि now the destination has been copied. मैं just इसके ऊपर जाके ये काम करूँगा. That's it. खुद ब खुद intelligently सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस सारी के सारी सेटिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा that what are you trying now. एंड मैं एक एक्सपेरिमेंट और करता हूँ. मैं यहाँ से आर्ट की क्लिक करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके इसको करता हूँ पेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. मिरेकल. ठीक है, अभी क्योंकि जाहिर है इसमें और ही बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट्स डू दिस करते जाएं एंड हैव अ लुक कि ये कितना स्मूथली ये काम करता जाएगा. अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं रहा इस लेयर की मैं कॉपी पहले बनाता, लेकिन चले मेरे पास वो कंट्रोल वी मैं यहाँ पे करूँ. यस, दैट वाज द लेयर नंबर 2. मैंने दोबारा वही पेस्ट कर दिया. दैट वाज द वन व्हिच वाज एक्चुअली द बेसिक. सो लेट मी ड्रैग इट डाउन एंड दिस इज द वन व्हिच आई हैव made with the patch tool. So have a look at this one. Amazing. अब हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा इसको थोड़ा सा yeah that's the one we are working. So let's get, बेशक इसको थोड़ी देर के लिए हम लेयर नंबर 1 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे. So what we'll do is कि हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम ये करेंगे कि थोड़ा सा ब्रश के साइज को बड़ा करेंगे. एंड बाय द वे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि यहीं पे खड़े खड़े ये काम हो जाए तो जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करें. यू फाइंड आउट द सेम प्रॉपर्टीज पैनल जो कि यहाँ पे क्लिक करने से आए. ओके, so this is something you must have to remember. The size of the circle या जो brush है अगर मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ, have a look at this, तो ये sampling करेगा 50 के ऊपर. Okay, now let's see. मैं यहाँ से start करता हूँ. With the help of Alt की मैं इस सारी चीज को copy बनाता हूँ. Let's make a copy of this. Have a look at this. यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी हमें इस बड़े वाले ब्रश को इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस मच बिगर हमें इसको छोटा करना पड़ेगा. द रीजन इज कि ये कर्व बहुत ज़्यादा डीप है और इसके लिए थोड़ा सा हमें जूम इन जाके अराउंड 20-25 के ऊपर जाके इतने से एरिया को हील करना पड़ेगा. लाइक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. हैव अ लुक एट दिस वन. ठीक है जी. अब आप बेशक इसको थोड़ा सा जूम आउट करें एंड गौर से देखें. डू यू फाइंड आउट एनी डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. सो आई वुड रिक्वेस्ट के टेक अ पिक्चर फ्रॉम योर फैमिली. किसी की भी पिक्चर लें, किसी की भी. टेक इट फ्रॉम द मोबाइल and with a very good quality, I must say with a very good quality lighting.
अगर डे लाइट इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी द बेस्ट। डे लाइट में एक पिक्चर लें जस्ट फेस की, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई ओल्ड एज का अगर मिल जाए, मेल और फीमेल हूसोएवर दैट इज, या कोई ऐसा शख्स जिसके फेस के ऊपर हील्स हों, लाइक फॉर एग्जांपल कोई दाग हो, या यूजुअली यू नो द गर्ल्स, बिकॉज हमारी इस ग्रुप में गर्ल्स काफ़ी सारी हैं, you do understand what is the meaning of in the makeup world, you know that okay, what does mean base जो वो बनाते हैं, actually this is something more or less something like that। ठीक है ना, हम पिक्चर की ट्रीटमेंट्स के लिए दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट टूल। आप ये देखते जाएं, जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ब्रश से एक दफा उसकी बनाई कॉपी। अब आपने लेट सपोज यहाँ से करना है, तो मैं थोड़ा सा लाइटर और वर्जन इसका ये लेकर और यहाँ से ये शुरू कर दूंगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता इट टेक्स टाइम, इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम। ये देखें, ये जिस तरह स्पॉट्स हैं, तो इन स्पॉट्स को बेसिकली मैं, ये स्पॉट्स हैं, ये स्पॉट्स हैं, इट इज़ लाइक सैंपल वो बना रहा है, सैम्पलिंग को वो ऑटोमेटिकली इसके क्लोजर जाके और इसको वो पैच बना देता है। ठीक है, सो the best ever thing is this first, and the otherwise इसके अलावा there are plenty of other things like pattern। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो you can just take this pattern और आप पैटर्न अप्लाई करना शुरू कर दें, लेकिन नो दैट इज नॉट बाय द वे फॉर द पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे हम सैम्पल के ऊपर काम करेंगे एंड सैम्पलिंग की ही ज्यादातर बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी ओल्ड एज, किसी भी शख्स की, सॉरी, आप इसको पिक करें एंड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आप हीलिंग के लिए यू मस्ट हैव टू टेक द सैंपल फ्रॉम हियर, एंड उसके बाद ये वाली चीज़ आप करते जाएं और देखते जाएं कि कमाल, ये इस ओल्ड मैन को थोड़ी देर में हम अच्छा खासा ओल्ड एज से निकाल के इसे बिल्कुल यंग बंदे की तरह कर दें। सो लेट मी स्टॉप हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स, एंड मैं क्योंकि जल्दी से कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी में, जस्ट टू गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं इस तरह वाला काम कर रहा हूँ, वरना अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इस पे ऊपर काम शुरू करें, यू फाइंड आउट कि ये इतना फाइन, इतनी फाइन क्वालिटी आपको दे देगा कि आपकी सोच है। ऑल्ट की से इसको क्लिक किया और ये दैट्स इट। अभी क्योंकि एक साइड इसकी बहुत ज़्यादा, सॉरी ये वाला रह गया पोर्शन, ओके, लेट्स टेक ऑल्ट की से ये वाला प्रेस किया और यहाँ से हम हल्के हल्के ये आते हैं, एंड दैट्स इट। आप जूम आउट करें थोड़ा सा, एंड अब आप और से देखें, तो दैट इज द पावर ऑफ spot healing tool. So that is very important for you to understand. This is alt की प्रेस रखनी है, नो नो नो, alt की से जस्ट स्टैम्प जिस तरह नहीं बना रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी जूम इन, मैं इतने सारे पोर्शन को दोबारा आपसे करके बताता हूँ। alt की आप किस जगह को सैंपल बनाना चाह रहे हैं, alt की यहाँ पे प्रेस करें। अभी देखें जहाँ पे alt की था ना, वो खुद ही बता रहा है आपको कि दिस इज रॉन्ग। आप इसको करेंगे तो ये वाइटिश हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये देखें गलत हो गया ना, बिकॉज मैंने सैंपल लिया हुआ था यहाँ का। ओके, तो सैंपल अब मैंने लेना है जो कि क्लोजर मैच हो इसके। फॉर एग्जांपल ये जो कलर स्कीम है ना, इससे रिलेटेड समवेयर क्लोजर टू दिस वन इज दिस। सो आल्ट की प्रेस करें और इस जगह पे करें क्लिक, और आल्ट की नहीं छोड़नी जब तक आपका डेस्टिनेशन पॉइंट ना आ जाए। डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया, आल्ट की छोड़ दें। अब वो क्या करेगा, अब आपने सिंपल क्लिक 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 करना है और देखते जाए कमाल। ओके, सो हल्का सा इसको दो तरीके से करने के, एक तरीका ये है कि आप इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ, ये ऑटोमेटिकली लाइक अ ब्रश टूल काम करना शुरू कर दें। ओके, ये बिल्कुल ब्रश की तरह। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें, क्लिक करने से ये और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। लेकिन ब्रश टूल से, क्योंकि समटाइम्स इट इज डार्क एंड देन लाइट, तो आपका सैम्पलिंग कलर वुड इज लाइक जस्ट वन, सो इट मेक सम टाइम प्रॉब्लम। सो आल्ट की दोबारा यहाँ पे है, यहाँ से आल्ट की, एंड आहिस्ता आहिस्ता लेट्स गेट क्लोजर टू दिस एरिया। ठीक है ना, अब आप जैसे जैसे क्लोज होते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी डार्कनेस और वो सारे शेड्स, ये सारी की सारी चीजें करती रहेंगी। अब लेट्स सपोज इसी चीज को अगर आप अप्लाई करें यहाँ पे, दिस इज वेरी सिंपल। अब आपने सिंपल इसी के नीचे विच इज द एरिया विच इज क्लीन, ऑलरेडी क्लीन, इसके ऊपर क्लिक करें और थोड़ा सा ऊपर जाके आल्ट की अब छोड़ दें, सो दैट कि आपका डेस्टिनेशन ये है, सॉरी
the point which you are trying to sample is this and destination area is this. Okay, छोड़ दें and just उसके ऊपर क्लिक करते जाएं और देखते जाएं अगले कमाल. Amazing. एंड दूसरा तरीका कि इसको ड्रैग करके भी देखें. ड्रैग करने से थोड़ा सा ये आपको इस तरह की शेप दे देता है, बट इट्स नॉट एज सच, द ड्रैग इज नॉट 100% करेक्ट समटाइम्स. ठीक है ना, लेकिन सैंपल जो क्लिक करने पे दैट इज मोर एक्यूरेट एंड सीमलेस. बिल्कुल आपको फील ही नहीं होता. ओके, सो एक उसकी शर्त ये है कि द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर शुड बी हाई. आप जितना लो क्वालिटी पिक्चर के ऊपर काम करेंगे दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. ओके, ये देखें अब चूंकि मैंने सैंपल तो गलत चीज या बिल्कुल लाइटिश, जितना उस लाइट वाले एरिया को करते जाएंगे उतना प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा. सो अगर आप थोड़ा सा इस तरह वाली चीज चाह रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल. थोड़ा सा इसकी अल्ट्रेशन करें, हल्की हल्की इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करें एंड यू फाइंड आउट कि इट इज परफेक्टली अमेजिंग. जस्ट लेट्स मेक इट रियलिस्टिक. बाल को जरा थोड़ा सा यहाँ से हम ईज कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली दिस इज समथिंग. ये वाला थोड़ा सा एरिया दोबारा हमें करना पड़ेगा. दैट्स ओके नाउ, दिस वन इज ओके नाउ. लेकिन और बार बार करें, बार बार करें. जो चीज आपको अप्रोप्रिएट, जहां से इसकी एडजस्टमेंट आपको लग रहा है कि दैट्स इज गेटिंग फाइन नाउ, बस वहां पे इसको छोड़ो. ठीक है, ये थोड़ा सा ये वाला एरिया हल्का सा हो गया लेकिन नो प्रॉब्लम, उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ओके, Rizwan is waiting, right? So this is a very simpler healing tool. Okay, आप जाएं यहाँ से पैच टूल में हीलिंग टूल. स्पॉट हीलिंग टूल भी मोर और लेस यही काम करता है, लेकिन आपने स्पॉट का एरिया पहले बना. करेक्ट. सो जैसे ही आप उसका एरिया डिफाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो उतने वाले एरिया को खुद ब खुद सैंपल जो साइड्स वाले एरियाज हैं उनसे वो उठा के और उसको हील करता जाएगा. ओके, लेट मी जूम इन अगेन एंड सैंपल को मैं थोड़ा सा यहाँ से जाके साइज इसका कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा एंड द स्पेसिंग इन बिटवीन 1 and 2 स्पेसिंग. वैसे यूजुअली जितना ये कम होगा उतनी इसकी क्वालिटी रिफाइन होती जाएगी. ठीक है ना, आपने कुछ भी नहीं करना. आपने ये देखा, दैट इज स्पॉट हीलिंग. स्पॉट हीलिंग पे आपको आर्ट की से दोबारा वो चीज बनाने की जरूरत नहीं है. ये खुद ब खुद उसी एरिया के राउंड अबाउट जो एरिया इस तरह का होगा उसको खुद ब खुद पिक करेगा और खुद से ही सैम्पलिंग बना लेगा. दैट इज येट अनदर मोर एडवांस क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन सारी की सारी चीजों को एक एक करके एक्सपेरिमेंट करें सो दैट कि आपके लिए किसी टाइम पे भी एटलीस्ट फोटो की एडिटिंग में इस तरह के मसाइल कभी भी पेश ना. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग. अब असाइनमेंट आपके लिए ये है कि अपनी अपनी पिक्चर लें, या चले अपनी अगर पिक्चर इट इज नॉट कंफर्टेबल तो आप कोई भी पिक्चर लें एंड उसको with this patch tool, smart healing या simple smart healing tool से इनमें से दोनों में से किसी healing brush tool या spot healing में से लेकर और उसको ये एक्सपेरिमेंट करके एक दफा देखिए. अब आप जाएं जरा एंड लेट्स ऑफ दिस लेयर नंबर 1 एंड हैव अ लुक. यहाँ से यहाँ पे पहुंचे. Done. So that's the best thing. That's the best possible. The power of Photoshop, I must say. कि देखें थोड़ी सी देर में अभी ये वाले एरियाज के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए वैसे. So let me zoom in a little bit more. Actually 200% strongly recommended कि बहुत ज़्यादा उसको मत जाएं, इतना मत जाएं कि वो बिल्कुल नजर ही आना ख़त्म हो जाए. ठीक है ना, दैट इज वेरी मच योर चॉइस कि आप इनमें से स्मार्ट हीलिंग लेना चाहते हैं. नो, स्मार्ट हीलिंग सम टाइम इट क्रिएट्स दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. सो इंस्टेड ऑफ दिस हीलिंग ब्रश टूल में से दैट इज मोर कन्वीनियंट. लेकिन आपकी अपनी अपनी चॉइस है. इन्होंने जिंदगी आसान कर दी आपके लिए कि इतनी सारी ऑप्शंस आपके सामने रख दी एक ही चीज को करने के लिए कि अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो समटाइम्स यू लाइक दिस, समटाइम्स यू लाइक दैट. So it is again open to you
कि आप ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स वन बाय वन करके करें। जितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना आपका हाथ पिक्चर्स के ऊपर साफ होता जाएगा। ठीक है, आप किसी बच्चे की पिक्चर लें और उसके साथ थोड़ा थोड़ा उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू करें। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वाज समथिंग मिसिंग, थोड़ा सा इस तरह कर दें एंड देन उसके बाद जूम आउट करें एंड हैव अ लुक कि किधर से किधर चीज चलेगी। परफेक्ट हरीम, मैं थोड़ी देर में आपके साथ शॉर्टकट कीज की पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग, एक छोटी सी चीज और जो कि आज के हमने करनी है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके नाउ। हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें।